Good morning, class 8th. As we have finished with the, I think, pronouns. Yes, we have finished with the adjectives, chapter 3 and 4. Now we are going to start with chapter 6 articles. We have to finish it very fast because these are very easy topics and you have been doing this since your class 3 or 4th. So we'll be doing a quick revision of these chapters, right? Because we have to do many other important chapters also further. You have already done this active passive. We have to come to the adverbs, then prepositions, and we have other chapters also, direct, indirect, phrases and clauses. So we will finish this articles in a 1 or 2 lecture. Is it clear? So listen to me carefully. So as we all know, articles are a kind of determiners that tell us whether a noun or a specific tell us about whether noun is specific or unspecific. Means there are two types of articles, definite and indefinite. A and N. A and N are indefinite, means they are very unspecific. They mean one or any one. They don't talk about anything specific. A is used with nouns beginning with consonants, a car, a break. We know that A is used with consonant sounds and An is used with the nouns beginning with the vowel sounds, annex and idea. So we can say A and An is an indefinite article. So A is used before nouns beginning with vowel if they have consonant sounds. A वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे vowel की जो sounds हैं वो consonant जैसी आती हों. जैसे a u, a unit test. यहाँ पे हम an unit test नहीं कहेंगे, a unit test, क्योंकि इसकी जो u की sound है वो consonant की तरह आ रही है. A university, we never use an in front of university because u की जो sound है यहाँ पे vowel जैसी नहीं है, consonant जैसी है. A one arm army, a European, an European नहीं बोलेंगे, European, because यहाँ पे जो sound है वो consonant की है. In these examples, we can observe the vowel sounds having consonant, like vowel sound जिनकी consonant आ रही है, u, consonant sound आ रही है. व की sound आ रही है ना यहाँ पे, व, यू यहाँ पे यूरोपियन है ना. तो ये जो साउंड्स हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं. इसलिए अगर ऐसी साउंड आ रही है और वो है इट इज़ स्टार्टिंग विद द वोवल सिंबल but still it is giving the consonant sound, that means we will use a unit test, a university, a one-man army, a European, because the sound is consonant. Similarly, an is used before nouns beginning with consonant if they have vowel sounds, like हम इनको we can use an before consonant symbols also, but if provided they are giving the vowel sound. तो साउंड जो है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अगर वॉवल साउंड आपकी कॉन्सोनेंट जैसी है तो ए लग जाएगा. अगर वही साउंड आपकी कॉन्सोनेंट की वॉवल जैसी है तो आपका एन लगेगा. समझ रहे हैं आप कि एन जो है वी यूज़ दैट बिफोर द नाउन्स बिगनिंग विद द वॉवल साउंड्स नॉट विद द वॉवल्स, because it has been proved here. There are so many examples. They are starting with the vowels, but their sound is like the consonant, so we are using a in front of that. But here there are some examples like h, honor, r, hair. So this is a h is a consonant, it's not a vowel, but the sound is vowel. That is why r, h is silent here. Honor, h is silent here. Hair, h is silent here. So here the h is silent, so it is starting with a vowel sound, so that is why we are using an with it. her sound है जो वो ओ की sound आ रही है, air. यहाँ पे भी h silent होता है, air बोलते हैं इसको, o sound. So a and as is used. Now we are going to read the rules. To denote a class, कोई class हमने show करनी है. A cow is a useful animal.
ठीक है. A whale is a mammal. We are showing a class of fish, class of animals, right? Before profession, कोई profession है, nationality है, religion है, we use an engineer, an American, a Christian. Clear? Before profession, कोई profession के आगे an लगेगा, nationality है, American, an Indian, religion, a Christian. With degree, title, etc. डिग्री और टाइटल हो एन एम ए. हम बोलते हैं ना आई एम एन एम ए. आई विल से दैट आई एम एन एम ए इन इंग्लिश एंड फाइन आर्ट्स. अ पद्म भूषण मीन्स आपको टाइटल मिला है, कॉन्सोनेंट है तो आप अ लगाएंगे. यहाँ पे भी हम एम ए बोल रहे हैं ना, ए साउंड क्या आ रही है, वॉवल की आ रही है ना, इसलिए यहाँ पे एन लगा है बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद द वॉवल साउंड. एम with rate, speed, etc. 50 रुपीज़ अ डज़न. रेट हो, स्पीड हो, ऐसी चीज़ें हों या 50 रुपीज़ अ डज़न. लाइक रुपया अ मंथ, 200 रुपी अ मंथ, 60 किलोमीटर्स एन आवर. समझ रहे हैं ना आप? सो यू रीड दीज रूल्स, आप इनको लर्न कर लीजिए एंड लिख भी लीजिए. स्टार्ट राइटिंग इन द नोटबुक्स. नोटबुक्स में लिखना स्टार्ट कीजिए. यहाँ से ये भी लिखिए, ये भी लिखिए और ये भी. आपने लर्न भी करना है. लर्न एंड राइट इन नोटबुक्स. अपनी नोटबुक्स में साथ के साथ काम करते रहिए. क्लास 8th. बिफोर वर्ब्स यूज्ड एज नाउन्स. आई वेंट फॉर अ वॉक, द बेबी इज गिवन अ बाथ. बिफोर वर्ब्स यूज्ड एज नाउन्स. वर्ब से पहले जो यूज़ होते हैं, ये वर्ब है हमारा, इसके पहले जो यूज़ होते हैं अ. बेबी इज गिवन अ बाथ. वर्ब से पहले ये वर्ब है ना आपका. द चॉइस ऑफ ए एंड एन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल साउंड ऑफ द एडजेक्टिव्स यूज्ड बिफोर द नाउन्स. अब जहाँ कहाँ ए लगेगा या कहाँ एन लगेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल साउंड ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की जो इनिशियल साउंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ए लगेगा या एन. लाइक एन ऑ, कौन सी साउंड आ रही है, ऑ मीन्स वॉवल साउंड है तो एन लगेगा. अ ग्रेट, ग्रेट तो मीन्स कॉन्सोनेंट हुआ तो ये ए लगेगा. एन ए साउंड है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स हैं हमारे. तो ये है अ साउंड, ये ए ई ओ यू. ऊ साउंड होनी चाहिए. जो हमारे हिंदी में स्वर नहीं होते अ आ ई ऊ, तो इंग्लिश में हमारे ये वॉवल्स होते हैं अ ए ई ओ ऊ. सो हियर ए की साउंड आ रही है तो एन लगेगा. यूज ए एंड एन वेयर नेसेसरी. अ हिस्ट्री बुक. यू की साउंड है ना तो ए लगेगा क्योंकि कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है. यूजफुल डिवाइस. अ यूनिवर्सिटी. अ हॉट एंड स्पाइसी मील. A European. A horror movie. A horrible film. 70 rupees a kg. Take a U-turn because consonant sounds है. A unit. Unicorn. A U. यहाँ पे सब कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है इसलिए यहाँ पे ए लग रहा है. अ साउंड आई. एन अनयूजुअल फिनोमिना. परमवीर चक्र है तो उसके आगे ए लगे. अब परमवीर चक्र, कोई टाइटल मिल रहा है या कोई अवार्ड मिल रहा है. एन एमिनेंट, की साउंड है ना. एन एमिनेंट. अ पेपर. एन इवेंटफुल. इवेंटफुल. एन नहीं, अ इवेंटफुल वीक क्योंकि ई की साउंड आ रही है. कॉन्सोनेंट साउंड है, वॉवल साउंड नहीं आ रही है.
the definite article, the species, sorry, the definite article the specifies the position of a noun in a sentence. जो द है ना बच्चे, वो नाउन की पोजीशन क्या है उसको स्पेसिफाई करता है कि उसमें नाउन की पोजीशन क्या है. जैसे ए एंड एन इज़ नॉट यूज बिफोर प्लूरल नाउन्स. जो ए और एन है वो हम प्लूरल नाउन्स के आगे नहीं लगाते, वेयर एज द इज़ यूज बिफोर द प्लूरल नाउन्स. बट द कैन नॉट बी यूज बिफोर प्लूरल नाउन्स. ये द जो है हम प्लूरल नाउन्स के पहले लगाते हैं, बट द कैन नॉट बी यूज बिफोर प्लूरल नाउन्स इफ दे आर यूज इन जनरल सेंस. पर अगर प्लूरल नाउन जनरल सेंस में बात हो रहा है तब हम वहाँ पे द नहीं लगाते हैं. जैसे आई वॉन्ट एन ऑरेंज. एन ऑरेंज या वन ऑरेंज, ठीक है ना. एनी ऑरेंज इज इक्वल टू कोई भी ऑरेंज या वन ऑरेंज. आई वॉन्ट टू बाय ऑरेंजेस एट द मार्केट प्लेस. ऑरेंजेस इन जर्नल, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑरेंजेस, नथिंग एनी स्पेशल. हम किसी स्पेशल ऑरेंज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. आई वॉन्ट एन ऑरेंज. एन ऑरेंज मीन्स कोई भी एक ऑरेंज, ठीक है ना. आई वेंट टू बाय ऑरेंजेस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एनी जर्नल, तो वहाँ द नहीं लगेगा. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक, द ऑरेंजेस आर फ्रेश एंड जूसी. स्पेसिफिक ऑरेंजेस, कोई हम स्पेसिफिक ऑरेंजेस के बारे में बात करें जो हमने विच आई हैव बॉट या जो मेरे पास हैं. जब हम कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं वहाँ पे हम द लगाते हैं, क्योंकि द जो है वो डेफिनेट नाउन है, सॉरी डेफिनेट आर्टिकल है. सो दिस इज़ द ओनली मेजर डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेट एंड इनडेफिनेट. ठीक है. द इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन. द नाउन के बिफोर यूज होता है. कहाँ कहाँ होता है अब हमने ये लिखना है, ये सारा लिखना है बच्चे आपने कॉपी में. यू हैव टू डू ऑल दिस. ये भी आपने नोटबुक में लिखना है, अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं सारे आपने. आई वॉन्ट एन, ये हो गया. वेन एवर वी वॉन्ट टू पर्टिकुलराइज दैट नाउन, हम किसी भी नाउन को पर्टिकुलराइज करना चाहते हैं. जैसे द बुक्स आई परचेज्ड यस्टरडे आर इंटरेस्टिंग. द क्यों लगाया हमने, क्योंकि हम कोई नाउन हमारा क्या है, बुक. इनको हम पर्टिकुलर कोई बुक बता रहे हैं. हम उस स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं. द बुक्स, कौन सी बुक्स, आई परचेज्ड यस्टरडे. तो इसमें कोई स्पेशल बुक्स हैं, जर्नल बात नहीं कर रहे हम बुक्स की, कोई जर्नल बुक्स की बात नहीं कर रहे. आई वॉन्ट दैट बुक्स विच आई बॉट यस्टरडे, ठीक है ना. सो द बुक्स आई परचेज्ड यस्टरडे आर इंटरेस्टिंग मीन्स जो मैंने कल खरीदी थी वो वाली बुक्स जो है ना वो इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम द यूज़ लगा रहे हैं. द शूज़ इन दैट बॉक्स मीन्स वो वाले शूज़ जो उस बॉक्स में हैं आर न्यू वंस. तो यहाँ पे हमने नाउन को पर्टिकुलराइज किया है. सेकेंड, अगर व्हेन इट इज़ मेंशन्ड अगेन, और अगर वो नाउन दोबारा मेंशन होता है. माई फादर प्रेजेंटेड मी अ प्लास्टिक बैग, ठीक है. आई हैव सेव्ड 2000 रुपीज़ इन द प्लास्टिक बैग. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक बैग. एक बार हमने यूज़ किया, वहाँ पे हमने ए लगाया. यहाँ पे हम जर्नल कोई बात करें, प्लास्टिक बैग मिला. बट जब हम दोबारा इसके बारे में बात करेंगे तो हम एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं ना. सो वी आर मेंशनिंग इट अगेन. सो देयर वी विल यूज़, if we are repeating that word, that noun, so then we will use the before that noun. I have saved 2000 rupees in the plastic, which this one. So at this place it was an indefinite, we were talking about any plastic bag, but here we are talking about this plastic bag which your father has presented. So when it is clear from the situation which person or thing we mean. थर्ड पोजीशन क्या होती है हमारी, व्हेन इट इज़ क्लियर फ्रॉम द सिचुएशन कि हम किस पर्सन और किस थिंग के बारे में बात कर रहे हैं. जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ या पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या कोई सिचुएशन. वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर. आप किसके बारे में बात करें, ओपनिंग द डोर मीन्स एक स्पेशल आप पर्सन या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. यू आर क्लियर अबाउट इट. आई मीट द प्रोफेसर टुडे means मैं आज प्रोफेसर से मिला, means there was something specific about it. So here
when you are clear about the situation. Then when the adjective describing the noun is in superlative, जब जो हमारा एडजेक्टिव है नाउन को जो डिस्क्राइब कर रहा है वो सुपरलेटिव में है, ठीक है, थर्ड डिग्री, ही इज़ ब्रेवेस्ट सुपरलेटिव होगी ना, तो यहाँ पे द लगेगा, ही इज़ द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है।